اور بات ہے، ڈرنا نہیں ہے، کوئی ذہن میں سوال آئے نا وہیں ہمیں روک لیں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، سمجھ کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ جو ضروری ہے احکام وضو، یہ احکام خمسہ عربی کا لفظ اسے کہتے ہیں 5 احکام، 5 احکام لکھ لیں، 5 احکام، میں جلدی کروں گا، میرے لیے صرف 20 منٹ ہیں۔ ایک نمبر 1 دیکھو، واجب، واجب کی تعریف میں کر رہا ہوں، واجب کسے کہتے ہیں؟ جان تھوڑا بڑا لکھیں تاکہ ادھر سے نظر ہی نہیں آئے۔ اچھا، وہ بچوں میں تھوڑا ادھر سے موٹا لکھتا ہوں، واجب احکام خمسہ ہیں 5، نمبر 1 واجب، نمبر 2 یہ حرام، پھر آگے میں تعریف لکھتا ہوں، نمبر 3 مستحب، نمبر 4 مباح، نمبر 5 مکروہ۔ بیٹا یہ نام لکھ لیے، میں آگے آپ کو بالکل آسان سمجھاتا ہوں، واجب، حرام، مستحب، مباح، یہ نام لکھ لیں، بعد میں لکھ لینا، یہ ادھر ہی ہوں گے، اب طریق سے توجہ سے سمجھنی ہے، نہ سمجھ آئے پھر مجھ سے پوچھنا ہے۔ خمسہ مانی 5، 5 یہ آگے میں نے لکھ دیا نا، 1 2 3 4 5، یہ 5 احکام ہے، پورے میری طرف توجہ کرنا، ہمارا پورا جو اسلام ہے، پوری شریعت، پوری فقہ جو ہم امام علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کی ہماری فقہ ہے، اس میں یہ 5 قسم کے احکام ہیں، احکام جمع حکم کیا ہے، یعنی 5 قسم کے حکم ہیں، یا ہماری شریعت میں واجب حکم ہے، یا حرام حکم ہے، یا مستحب حکم ہوگا، یا مباح حکم ہوگا، یا مکروہ حکم ہوگا۔ ابھی بتاتا ہوں، ابھی لکھ کے آگے بتاتا ہوں۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، واجب جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، خمس، یعنی واجب اسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں، واجب وہ ہے جس کا کرنا لازمی ہو، نہ کرنے سے گناہ ہو، آسان سلیس، ٹھیک ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ اس کا کرنا لازمی ہو، نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر سزا ہوتی ہے، ٹھیک؟ واجب لکھے میرے بیٹے، لکھے سوار آ چکے ہیں، میرے صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ جی واجب جس کا کرنا لازمی ہو، نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ سمجھ گئے ہیں؟ جہاں سے نہ سمجھ آئے مجھے روکنا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے حسین؟ جی حسن آپ کو بھی، حسین آپ کو بھی، زینہ ماشاءاللہ، حسن حسین آج جی ہماری کلاس میں ہیں سارے۔ اچھا نمبر 2 دیکھیں، حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام کا معنی ہے جو بالکل کرنا جائز ہی نہ ہو، جس کا مثلا جھوٹ بولنا بیٹا حرام، والدین کی بے ادبی، والدین کا کہنا نہ ماننا، جی چوری حرام، شراب خوری حرام، اس طرح تو ہاں جی ماشاءاللہ، تو اس طرح جتنے یہ معاشرے میں گناہ لوگ کرتے ہیں یہ سب حرام ہے، غیبت حرام، جی تو گویا والدین کا کہنا بیٹا ماننا لازمی ہے، واجب ہے، وہ واجبات میں سے ہے، والدین کی جو بھی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے بیٹا، وہ بڑی ترقی کرتا ہے، والدین کا کہنا ماننا ہے، اور ایک بڑی مرض ہے، وہ بعد میں چونکہ ٹائم چلا جائے گا، حرام ایسا کام جس کا نہ کرنا
चीज सोच रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आए। जी हाँ, ठीक है बेटा। हराम ऐसा जिसका तर्क लाजिम है। अब तर्क फिर उर्दू का लफ्ज़ था तो मैंने इसलिए लिखा है जिसका ना करना लाजिम हो जी, हराम होता है वो। अब जैसे किबला साहब बता रहे थे, इनको पहले तवज्जो कर ले, ये फिर लिख लेना, ये तो समझे ना बेटा। देखें जैसे किबला साहब बयान फरमा रहे थे, वुज़ू का तीसरी बार पानी डालना हराम है। हराम है क्या मतलब? यानी गुनाह है, जायज नहीं है। ठीक है जी, तवज्जो फरमाई है आपने। अच्छा आगे आ गया मुस्तहब। इधर से शाबाश, एक बच्चे ने सवाल किया मुस्तहब जी। हाँ मुस्तहब, इसका असल जो माना होता है इस्तहब्बा यस्तहिब्बु, इस्तिहबाब, हुब से निकला। तवज्जो करें ताकि आपके ज़हन में माना बैठ जाए। हुब से निकला है और इस्तहब ये बाब इस्तिफाल से तलब पर दलालत है, यानी अल्लाह मोहब्बत से चाह रहा है इस काम को, इसको मुस्तहब कहते हैं। तवज्जो फरमाई बेटा आपने। जिसको अल्लाह चाहे कि मुझे पसंद है उसको मुस्तहब कहते हैं। क्या हुआ? जिसे अल्लाह चाहे, सब बोले जिसे अल्लाह चाहे, अल्लाह पसंद करे, जिसे अल्लाह, उसे क्या कहते हैं? मुस्तहब। समझ आ गई ना? यानी गोया ये जो वुज़ू के दिखाए गए हैं मुस्तहब्बात, ये हाथ धोना, कुली करना, नाक का पाक करना, ये अल्लाह ने चाहा है, ये अल्लाह को पसंद है कि मेरा बंदा मुंह को भी अच्छा साफ कर ले, नाक को भी साफ कर ले, हाथ भी लो, फिर वाजिब वुज़ू कर ले। समझ आ गई? अच्छा, वो बच्चे ने सवाल किया था कि अगर जैसे किबला साहब ने फरमाया कि आप जल्दी में हैं, तवज्जो करें, ज़हनी तवज्जो रखेंगे, आपका फ़ायदा है कि जब हमने एक दफ़ा सिर्फ वाजिब वुज़ू करना, 3 चुल्लू से वुज़ू वाजिब हो जाता। एक चुल्लू डालें चेहरे पे, एक चुल्लू इस हाथ पे, एक चुल्लू इस हाथ, और इन 3 जो चुल्लू डालने हैं तर अच्छी तरह करना है, बिल्कुल अच्छी तरह। लाजमी नहीं है कि पानी चेहरे से बह जाए, नहीं, चेहरे पर ही एक चुल्लू डाला है उसी पर दर्द हो गया, लेकिन तर आपने ठीक करना है। ऐसे देखो अच्छी तरह सुई बराबर जगह खुश्क रह गई, वुज़ू बातें होगा, वुज़ू नहीं होगा। तवज्जो करें, मुझे जल्दी है कि किबला साहब आ चुके हैं कि एक चुल्लू चेहरे पे डाला, एक चुल्लू इस हाथ पे डाला, और अच्छी तरह उंगलियां सीधी रखें जैसे किबला साहब ने बताया। मुट्ठी बंद होगी तो वुज़ू नहीं होगा, मुट्ठी बंद होगी तो वुज़ू नहीं होगा आपका। ये धोना वाजिब होता है। एक चुल्लू डालें, चारों तरफ उसको अच्छी तरह मस कर लें बेहतरीन जी, जितना वो पानी नमी तक पहुंच जाए जल्द तक। फिर इस हाथ को एक दफ़ा, अब वो आपका नाम दानियाल ने सवाल किया था, इस हाथ की जो तरी हम इस पे घुमाते हैं, तवज्जो करें, इस पे जो हम फेरते हैं तो फिर दोबारा जो डालते हैं, यानी इसको एक बार इसलिए धोते हैं कि वाजिब तरी से वाजिब मस्सा होता है, तो जो जुमे में ही बयान हुआ था। अब देखें जो आपने सवाल किया, जो हम पहले तरी वाला हाथ फेरते हैं, ये वुज़ू का हिस्सा नहीं है, ये वुज़ू का हिस्सा नहीं है। अब हम जो ऊपर से चुल्लू डाल रहे हैं, असल ये वुज़ू का पानी, वो पहला वुज़ू का पानी नहीं है। ये चीज समझने वाली है, यहाँ गलती होती है। वो जो पहले हमने नमी, वो तो हम इसलिए करते हैं ना कि हाथ थोड़ा सा नम हो जाए, फिर ऊपर से जो पानी चलाते हैं वो पूरा फिर जाता है, वगरना वो तरी वुज़ू का हिस्सा नहीं है बेटा। समझ गए? वो कब भी दोहराएंगे इसको। अब अच्छा, मुस्तहब का माना क्या बताया मैंने? जो अल्लाह को पसंद है। और अब जोर के नफल हैं, मगरिब के नफल हैं जी, असर के नफल हैं, इशा के नफल हैं, वो सारे मुस्तहब हैं। क्या मतलब? वो नवाफिल अल्लाह को पसंद है। अब रह गया इस पसंद को वाजिब नहीं, अलबत्ता अल्लाह को कर लें तो बड़ा पसंद, आपको सवाब मिलेगा। अगर आप वो मुस्तहब को नहीं बजा लाते तो अल्लाह नाराज नहीं होता, अल्लाह नाराज होता। इस मुस्तहब का क्या मतलब हुआ? कर लें तो सवाब, कर लें तो सवाब, ना करें तो गुनाह। लिखें बेटे, इन चीजों को लिखें, काम आएंगी। ये आपके लिए बहुत मुफीद है, गुनाह नहीं है। मुस्तफा हैदर, मैंने तेरी कॉपी चेक करनी है घर जा। अच्छा बेटा, अब आगे आ गया मुबाह, मुबाह की बात।
मुबाह ये रोजाना ये आनी थी इस तरह है, इसलिए मैंने आज वजाहत की है। मुबाह किसे कहते हैं? मुबाह ऐसा काम जो आपके लिए अल्लाह ने जायज़ करार दिया है और आप जायज़ होते हुए ना करें, उसे मुबाह कहते हैं। मसलन तवज्जो करें, बाज़ वक्त खाना वाजिब हो जाता है, आम सूरत में खाना हमारे लिए मुबाह है। दोपहर का खाना, रात को खाना, सुबह नाश्ता, पानी पीना, ये सारे इनको कहते हैं मुबाह। बहा युबाहो यानी तो जो आपके लिए बह असल इसका लुग़वी माना है दिल की पसंद और सुकून जी, जिससे इंसान को सुकून मिले उसको कहते हैं बह जी। तो मुबाह मफूल का सीगा है, यानी जिसके इस्तेमाल से इंसान को सुकून मिल जाए। अब खाने से इंसान को सेहत मिलती है, सुकून मिलता है, दवाई खाने से सेहत और सुकून मिलता है, पानी पीने से, दूध पीने से सेहत और सुकून मिलता है, ये मुबाह है। अगर इसको आप ना करें तो ना गुनाह है ना सवाब है। एक मुबाह काम को आप छोड़ दें, बाज़ औक़ात तवज्जो करें, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला नाजब हमें फरमाते हैं, मैं खुदा की रज़ा के लिए मुबाह काम को भी छोड़ देता हूँ। अल्लाहु अकबर। खुदा की रज़ा के लिए खाना खाना, मौला अली अलैहिस्सलाम का तकरीबन 3.5 किलो जौ है पूरी जिंदगी की खुराक। 3.5 किलो जौ, वो जौ पीस के उसकी रोटी मौला खाते थे। और मौला की हदूदन किबला साहब बैठे हैं, 57 साल उम्र है सरकार अमीरुल मोमिनीन की, 57 साल है, तकरीबन 60। हाँ 60 है, रसूलुल्लाह के बराबर। तो 60 साल मौला की उम्र है। 60 साल में मौला ने, अजीजों हम कितने खुशकिस्मत शिया हैं, हमें मौला कितने अजीम इमाम नसीब हुए हैं। मौला अली अल्लाह की खुशनुदी के लिए खाना नहीं खाते थे। हाँ? उनका दस्तरखान था खुद का। हाँ शाबाश, सवाल अच्छा आपका, बताएंगे आपको कि मौला हसन के दस्तरखान चलते थे, मौला हुसैन के, बीबी पाक के घरों में दस्तरखान थे, लेकिन खुद नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? शाबाश, और कोई जवाब कोई दे, आप बोले मौला क्यों नहीं खाना खाते थे? शाबाश, डरे नहीं, जो जवाब है दें। कि वो कहते थे कि पता नहीं किसी और के दस्तरखान पे ये है या नहीं। शाबाश, एक जवाब अच्छा है, और ये फायदेमंद है इसलिए। शाबाश, ये भी दूसरा जवाब अच्छा है, और बोले शाबाश, ये सबसे बड़ा जवाब सही है, अल्लाह की खुशनुदी। शाबाश बेटा, आपके लिए इनाम होगा। ये सही जवाब ये है। मौलाना साहब अभी आपने कहा है हम ये जो काम है अब खाना खाएं या ना खाएं, अल्लाह का उससे कोई वो नहीं, उनको ना खुशी मिलेगी कि हम खाएं या ना। मुबाह का माना है जायज़, मुबाह की बात हो रही है, ऐसा काम जिसका करना ना करना बराबर हो, जिसका करना ना करना, ना आपको उसके करने से सवाब मिलता है ना उसके करने से गुनाह तो मिलता फिर है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो खाना नहीं खाते। अच्छा बात ये याद रहा, ये रहा, मौला अल्लाह की खुशनुदी के लिए खाना नहीं खाते थे। क्यों? उसमें 2 रास्ते, एक तो सिर्फ बंदा खाली पेट हो ना, अल्लाह की इबादत ठीक होती है। जो रूहानी लोग होते हैं बिल्कुल खाना चंद लुक में खाते हैं, वो उनकी पता ग़िज़ा क्या हो जाती है, फिर कौन बताएगा? वो खाना तो खुद खाते नहीं है, तो उनकी ग़िज़ा बगैर ग़िज़ा के कैसे जिंदा रहते हैं? इबादत खुदा। शाबाश, माशाअल्लाह। उनकी ग़िज़ा ज़िक्र खुदा बन जाती है। ऐसे इलाहियान की ग़िज़ा जो होती है वो ज़िक्र खुदा होती है। अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल जो हैं खुद ब खुद सैर हो जाते हैं, उनको खाने की परवाह नहीं रहती है। आज भी कोई बंदा इस तरह मेहनत हो जो तकवा करे ना, उसको भी खाना छूट जाता है, ज़िक्र खुदा से सैर हो जाता है। ये उर्फा की मंजिल है। तो मुबाह, लंबी बात हो रही है, टाइम 2-3 मिनट रह गए। मुबाह ऐसा काम जिसका
کھائیں کوئی حرج نہیں، کھا لیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. خوشنودی خدا میں چھوڑیں کہ میں یار رات کو نہ کھاؤں یا 1-2 لقمے کھاؤں تاکہ صبح جلدی اٹھوں، میں نماز عشاء پڑھوں، میں نفل پڑھوں. زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، اس لیے اللہ والے کم کھاتے ہیں تاکہ میں جلدی اٹھوں، عبادت زیادہ کروں. اس وقت کھانا چھوڑنے میں ثواب ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، میری رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب بیٹا آگے مکروہ اس کا عربی میں تھوڑا سا آسان ہو جائے گا آپ کو سمجھنا. اقل الثواب کا مطلب ہے جس کے کرنے سے ثواب کام ہو جائے. مکروہ اس سے کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب کام ہو. یہ مکروہ یعنی کیا مطلب؟ بہتر ہے نہ کیا جائے. اگر آپ کر لیتے ہیں گناہ نہیں، بہتر ہے. مکروہ اس سے کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے. اگر آپ کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، اس کا مکروہ بولتے ہیں. آپ دیکھیں نماز میں بندہ کھڑا ہے، ایسے خارش کرنا شروع کر دے، ایسے انگلیاں مارنا شروع کر دے، ایسے کھڑا ایسے آنکھیں پھیرنا شروع کر دے، ہاں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. پھر اس کی وضاحت بیٹا کل مزید ہوگی. اب قبلہ صاحب کا ٹائم ہو گیا. ہمارے معزز مہمان ہیں قبلہ علامہ معیز صاحب تشریف لائے ہیں، وہ اب ہمیں وہ درس دیں گے. محمد علی محمد وہ آن کر دیں، لائٹ آن کر دیں. صلی اللہ محبت بچوں یہ لکھ لیا کہ مٹا دیں. جی جی چلو. خدا ختم انبیاء بلندر سلام. کسی تاخیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں. جو عنوان ہم ڈسکس کریں گے، کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، صرف ایک ڈسکشن ہے آپ کا ساتھ. جو چیز ہم ڈسکس کریں گے ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر ہے یا نہیں. مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کو کون کون سی کلاسز میں